السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ بہار اسٹیٹ اردو سے متعلق جو ہم نے ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کی دوسری ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں آج ہم اسم اور اس کے قسموں کے بارے میں، جو دوسرا پوائنٹ ہے دیے گئے سلیبس کا، اسم اور اس کے قسمیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ویڈیو بہار اسٹیٹ اردو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ان اساتذہ کے لیے بھی یہ ویڈیو ضروری ہے جو ابھی نیوجت ٹیچر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور وہ جلد ہی فروری میں ہونے والے سکشمتا پریکشا کے اندر بیٹھیں گے وہ اردو کو بطور مضمون پیپر میں دینا چاہتے ہیں، یعنی اردو کا انتخاب انہوں نے بطور مضمون کیا ہو، تو وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے اسم کی اور اس کے قسموں کی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ اسم کی تعریف، یعنی اسم کسے کہتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی معلوم ہے اسم کی تعریف سے متعلق حرف کی تعریف، تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے بھی سوال بن جاتے ہیں اور اس میں انسان کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے۔ تو اسم کی تعریف کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اسم کی تعریف؟ تو اسم کی تعریف یہ ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز، اسم کی تعریف کر سکتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھ لیں، کسی شخص کا نام، مثال کے طور پہ میں ایک نام لکھ دیتا ہوں، راشد حامد، یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ کا نام، جیسے دلی یا دہلی، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کا نام جیسے قلم، ٹھیک ہے، قلم، کتاب وغیرہ، تو یہ تمام کیا ہیں، اسم ہیں۔ ٹھیک، تو اسم کی تعریف یہ ہوگی کہ کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسم کی کیا قسمیں ہوتی ہیں ہم اس کو بعد میں ذکر کریں گے اس کا۔ اس سے پہلے ہم ایک اہم چیز کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم لوازم اسم کہتے ہیں، کہ لوازم اسم کسے کہتے ہیں اور کتنے ہیں لوازم اسم۔ تو لوازم اسم کیا ہوتا ہے؟ لوازم اسم کا مطلب ہم کچھ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اسم کی خصوصیات، یعنی کوئی لفظ، یعنی ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں، اسم کی خصوصیات، اسم کی خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوازم اسم۔ لوازم اسم کیا مطلب؟ اسم کی خصوصیات یعنی اگر کوئی لفظ اسم ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں تھوڑا سا، پھر میں لکھ دوں گا کہ اگر کوئی لفظ اسم ہے تو اس کے اندر کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی ہر اسم کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی لفظ اسم ہے تو ان کے اندر وہ تمام کی تمام خصوصیتیں ہونی چاہیے، تب ہم ان کو اسم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تمام چیزیں جو کسی اسم کے اندر ہونا ضروری ہے انہیں ہی ہم لوازم اسم کہتے ہیں، یا وہ اسم کی خصوصیت کے اندر آتا ہے کہ بھائی جو بھی اسم ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی خصوصیت ہیں وہی لوازم اسم ہے، تو اس کو آپ ایسے ہی یاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے آپ ایسے کر لیں کہ لکھ لیں یہاں پہ کہ لوازم، کیونکہ سب سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ لوازم اسم ہے کیا۔ تو لوازم اسم سے مراد، میں یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں، وہ خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات ہیں جو
हर इसम में पाई जाती हैं, जो हर इसम में पाई जाती हैं। यानी जो भी इसम होगा उनके अंदर वो खुसूसियात होंगी ही। तो वो खुसूसियात जो हर इसम के अंदर पाई जाती हैं उन्हीं को हम लवाजिम इसम कहते हैं। ये तो हो गया लवाजिम इसम किसे कहते हैं। अब इसकी किस्म कितनी है हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये 3 है। कितने हैं लवाजिम इस्म? 3। कौन कौन? नंबर 1 इसको लिख लें, जिन्स। जिन्स, जिन्स का क्या मतलब हुआ? यानी मुज़क्कर व मुअन्नस होना, तज़किर व तानीस जिसको बोलते हैं, मुज़क्कर व मुअन्नस। यानी कोई भी अगर इस्म होगा तो या तो वो मुज़क्कर हो सकता है या वो मुअन्नस होगा। ठीक है, तो इस्म अगर है तो वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। तो मुज़क्कर और मुअन्नस का होना यानी जिन्स का होना उसके अंदर ज़रूरी है, उस इस्म के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी जो दूसरी किस्म है वो है तादाद। तादाद से क्या मुराद है? तादाद से मुराद है कि वो इस्म किसी एक शख्स के लिए बोला जा रहा होगा या एक से ज़्यादा के लिए बोला जाएगा, यानी वाहिद और जमा। तादाद से मुराद वाहिद जमा, वाहिद जमा। आप समझ सकते हैं इसको। तो पहले किस्म क्या है लवाज़िम इस्म की? जिन्स। दूसरी किस्म तादाद, और उसकी जो तीसरी किस्म है वो है हालत। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हालत। क्या है? हालत। अब हालत से क्या मुराद है? यानी वो जो इस्म होगा वो जुमले के अंदर किस हाल में इस्तेमाल हो रहा है? फ़ाइल बनकर, यानी हालत फ़ाइली में, यानी फ़ाइल बनकर हालत फ़ाइली, या हालत मफ़ऊली। ठीक है, मफ़ऊल बन के इस्तेमाल हो रहा है या फ़ाइल बन के इस्तेमाल हो रहा है, ये किस हालत में, या इजाफ़त की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हम हालत पढ़ेंगे, ये एक अलग से चैप्टर है पूरा, तो हम वहाँ पे पूरी तफसील से इसको जिक्र करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल इतना समझ लें कि जिन्स से मुराद क्या है। इसकी 3 किस्में हैं। लवाज़िम इस्म कितनी हैं? 3 है, जिन्स, तादाद और हालत। जिन्स, तादाद और हालत। तो जिन्स से मुराद क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस का होना, यानी कोई इस्म होगा तो वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। तादाद यानी वाहिद और जमा का होना, वो इस्म वाहिद होगा या जमा होगा, एक फ़र्द के लिए बोला जाएगा या एक से ज़्यादा फ़र्द के लिए बोला जा सकता है वो। इसी तरीके से हालत है, यानी वो उस इस्म को जब आप इस्तेमाल करेंगे या तो वो फ़ाइली हालत में होगा, यानी जुमले में वो फ़ाइल बन सकता हो, या मफ़ऊली हालत में होगा, वो जुमले में मफ़ऊल बन के इस्तेमाल हो सकता हो। तो ये हो गया आपको लवाज़िम इस्म। और लवाज़िम इस्म कितने हैं ये पूरा। लवाज़िम इस्म क्या हो गया? इस्म के खुसूसियात, वो खुसूसियात जो हर इस्म में पाई जाती हैं। और लवाज़िम इस्म हैं कितने? 3 हैं। क्या? जिन्स, तादाद और हालत। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस्म की किस्मों के ऊपर। इस्म की किस्में सॉरी, ये देख लें कि यहाँ पर मैंने लिखा कि इस्म की किस्में, इस्म की कई किस्में हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1 पे, हम यहाँ पर डाल लें नंबर 1। पहले किस्म ये इफ़राद के लिहाज से। क्या है? इफ़राद के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें ख़ास और नंबर 2 इसमें आम। अब यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये जो है कि इफ़राद के लिहाज से, तो इफ़राद के लिहाज का क्या मतलब हुआ? यानी जो इस्म है वो इफ़राद के लिहाज का मतलब ये हुआ कि वो जो इस्म है वो इस्म किसी एक फ़र्द के लिए बोला जा रहा है, यानी जब वो इस्म बोला जा रहा है तो उससे कोई एक फ़र्द मुराद हो रहा है, या एक से ज़ायद चीज़ें या एक से ज़ायद अशख़ास और चीज़ों के लिए वो लफ्ज़ बोला जा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने बोला हामिद, तो वो एक ख़ास हामिद नामी शख्स जो है उसके लिए बोला जाएगा, तो इसमें ख़ास हो गया, चूँकि उस हामिद के लफ्ज़ से एक ख़ास फ़र्द मुराद हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक से ज़ायद चीज़ें, मिसाल के तौर पे किताब। अब किताब कई तरह की हो सकती हैं, तो खा वो दीनी किताबें हों, दुनियावी किताबें हों, जिस भी तरह की किताबें, मुख्तलिफ़ तरह की किताबें हैं, आप उनके लिए एक लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं, किताब। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ किताब है वो इसमें आम है। ठीक है, तो
اسی لیے کہا گیا کہ افراد کے لحاظ سے، یعنی جو لفظ اسم ہے وہ اسم کسی ایک فرد کے لیے یا کسی ایک چیز کے لیے بولی جا رہی ہے، یا پھر ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے وہ اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ چیزوں پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو ایک سے زائد چیزوں پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ایک ہی طرح کی ایک سے زائد چیزوں پہ اگر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ اسم عام ہے، اور اگر بالکل کسی ایک خاص چیز کے لیے اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو وہ اسم خاص ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اسی کو ہم لکھ لیتے ہیں، مطلب کہ اسم خاص کی تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہم اسم خاص کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ کسی مخصوص شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں، یعنی وہ جو نام ہو ایک مخصوص خاص، جیسے یعنی وہ نام جو ہو وہ کسی مخصوص شخص کے لیے ہو، یعنی جب آپ اس سے بولے تو اس سے کوئی خاص فرد مراد ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے لے لیا حامد، تو حامد جو ہے ایک مخصوص جو شخص ہے جس کا نام ہے، اس کے لیے وہ لفظ بولا جا رہا ہے تو وہ اس میں خاص کی علامت ہے۔ اور آپ کسی جگہ کا نام، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے لیا دہلی، تو دہلی جو ہے ایک مخصوص جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے آپ جو ہے لے لیتے ہیں لال قلعہ۔ ٹھیک ہے، لال قلعہ یہ بھی کیا ہے، اسم خاص ہے۔ اور اسم عام کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے جو لفظ بولا جائے اسے اسم عام کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال آ جائے گی کوئی بھی قلم، کتاب، ٹھیک ہے، لڑکا جو آپ بولتے ہیں ہے نا، اور آدمی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک، اب یہاں پر جو ایک چیز ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اسم خاص کو ہی ہم اسم معرفہ بھی بولتے ہیں اور اسی کو اسم علم بھی بولتے ہیں، ان کے اوپر زبر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، علم نہیں ہے یہ لفظ، علم ہے۔ تو اسم خاص کو ہی ہم اسم معرفہ اور اسم علم بھی کہتے ہیں، تو یہ نام بھی یاد رکھنا ہے۔ اسم معرفہ کہا جائے تو اس سے بھی مراد وہی ہے، یعنی کسی خاص شخص یا جگہ یا چیز کا جو نام ہے، اور اسم علم جو ہوتا ہے وہ بھی کسی خاص شخص یا چیز کے نام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسم خاص کو ہی ہم اسم معرفہ اور اسم علم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، اب ہم دیکھتے ہیں اسم خاص کی قسمیں۔ ٹھیک، اسم خاص کی تعریف ہم نے دیکھ لی، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم خاص کی قسمیں۔ اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں اس کی بھی۔ تو اس کا بھی ریفرنس یہ ہے کہ SCERT کی جو کتاب ہے، بہار SCERT کی اردو قواعد، اس کے اندر سے ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ وہاں جو 6 قسموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو آپ اس کو اطمینان سے نوٹ کر سکتے ہیں اور بطور ریفرنس آپ اس کتاب کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کی 6 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ علم، میں نے بتایا عین کے زبر کے ساتھ۔ علم کیا ہوتا ہے؟ علم کسی شخص، جگہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام کو، کوئی بھی شخص یا جگہ ہے اس کے خاص نام کو، آپ اس کو صرف اتنا لکھ لیں کہ خاص نام کو علم کہتے ہیں۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام کو اسم علم کہتے ہیں۔ جیسے آپ لے سکتے ہیں فاطمہ، نام ہے کسی کا، ٹھیک ہے، آپ لے لیں ہمالیہ، ہے نا، ہمالیہ پہاڑ ہے، یہ بھی خاص، یا آپ لے لیں گنگا ندی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ اس میں خاص کی علامت ہے، اسی کو ہم علم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک،
दूसरी किस्म इसकी क्या है, कुन्नियत। अब कुन्नियत क्या है, कुन्नियत को आप ऐसे समझ लें कि कुन्नियत वो नाम है जो वो नाम है वो नाम जो माँ बाप, बेटा बेटी, बेटा बेटी या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो, या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। जैसे इतना लिखना पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है लिखने में थोड़ा सा, ठीक है, क्या समझा। तो कुन्नियत किसे कहते हैं, वो मतलब एक ऐसा नाम होता है जिसमें इंसान अपने आपको जो है माँ बाप की तरफ मंसूब करके नाम रख लेता है, एक नाम बना लेता है, या उसका इस्तेमाल करता है, या अपने बेटा बेटी की तरफ मंसूब करके, या किसी और ताल्लुक़ से जो वो शोहरत पाया जाता है, जो नाम, वो कुन्नियत कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब कहते हैं एक है उम्मे कुलसुम, कुलसुम इसका लफ्ज़ी माना क्या होगा, कुलसुम की माँ। तो जिसने भी नाम रखा है अपने आप को क्या क्या बेटे बेटी, यानी कुलसुम उनकी बेटी है, तो उसकी वजह से उनको उम्मे कुलसुम कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेटी की तरफ मंसूब हो गया। जब बोलते हैं इब्नुल वक्त बोलते हैं, है ना, वक्त का बेटा, तो ये भी आपको कुन्नियत की मिसाल आ जाएगी। या इसी तरीके से अबुल कासिम कहते हैं, कासिम के अब्बू, है ना, तो ये अबुल कासिम, इब्नुल वक्त, उम्मे कुलसूम। तो ये जो है जो माँ बाप या बेटा बेटी की तरफ जो नाम मशहूर या मंसूब होता है वो कुन्नियत कहलाता है, ठीक है, वगैरह नोट डालने इसके अंदर वगैरह, ये कुन्नियत है। अच्छा लक़ब, फिर लक़ब क्या है, तो लक़ब के अंदर आप ये बात ध्यान रखें कि लक़ब जो दिया जाता है ना, वो किसी इंसान के किसी खूबी या ख़राबी की वजह से जो नाम आवाम की तरफ से मशहूर हो जाए या दे दिया जाए, वो आपको क्या कहलाता है, लक़ब कहलाता है, कि फ़लाँ का ये लक़ब पड़ गया, ठीक है। यानी इसको हम इस तरह से लिख लें कि वो नाम जो किसी खूबी, इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे, जो किसी खूबी या खराबी या बुराई कह लें, ठीक है, जिसे खूबी या खराबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए। इन तारीफ़ात को याद रखना ज़रूरी है और इससे मुताल्लिक़ जो मिसाल है वो, ठीक है, वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की वजह से आवाम की तरफ से दिया जाए उसे हम लक़ब कहते हैं। जैसे कहते हैं रुस्तम हिंद, अगर किसी को कहा जाए रुस्तम हिंद, ये रुस्तम हिंद क्या है, बहुत ज़्यादा मशहूर था, उसकी खूबी थी, बहुत बहादुर था, तो उसका लक़ब जो है रुस्तम हिंद पड़ गया, और लोग उसको जो है रुस्तम हिंद कहने लगे। या बहुत बेहतरीन गाने वाला और किसी की आवाज़ बहुत सुरीली हो तो उसको हम मलका तरन्नुम कह देते हैं। क्या कहते हैं आवाम, क्या कहते हैं, मलका तरन्नुम। तो किसी की सुरीली आवाज़ या मशहूर बेहतरीन आवाज़ होने की वजह से उसको मलका तरन्नुम कहा जा सकता है ना। या इसी तरीके से कोई बहुत बहादुर था तो बहादुरी की वजह से उनको शेर खुदा कहा जाने लगा। हज़रत अली को कहते हैं शेर खुदा, है ना, तो शेर खुदा कहा जाने लगा। तो बहादुरी की वजह से लोगों के दरमियान वो मशहूर हो गया शेर खुदा, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको लक़ब कहलाती हैं। कौन, जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर आवाम की तरफ से जो नाम दे दिया जाए या जो नाम पड़ जाए वो लक़ब कहलाता है। जैसे रुस्तम हिंद, मलका तरन्नुम, शेर खुदा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोहसिनुल मुल्क कहते हैं, है ना, अबू जहल भी कहते हैं, है ना, बिल्कुल, तो ये अबू जहल भी लक़ब है। अबू जहल हो गया, कलीमुल्लाह कहते हैं, ये सब मिसालें हैं इसकी, ठीक। तो ये लक़ब की मिसालें आ जाएंगी इसके अंदर। अब अगला जो है वो है खिताब। खिताब किसे कहते हैं, तो लक़ब और ख़िताब में फ़र्क यह है कि लक़ब में जो नाम होता है वो किसी खूबी या ख़राबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है, और ख़िताब जो होता है ये किसी बादशाह वक्त या उमरा या हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। यानी कह ले कि ये बादशाह
या हुकूमत या उमरा की तरफ से दिया जाने वाला नाम, एजाजी नाम ये कह सकते हैं, की तरफ से दिया जाने वाला एजाजी, बतौर एजाज जो है एजाजी नाम, ये खिताब कहलाता है। जैसे मिसाल लेने इसकी, जैसे कह लें कि भारत के अंदर जो भारत रत्न देते हैं, अब ये देखिए भारत रत्न जो है ये क्या है, खिताब है एक। अंग्रेज़ों ने जो है किसका लक़ब दिया था, सर सैयद को सर का खिताब दिया था, ये हो गया। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि शमशुल उलमा कहते हैं, शमशुल उलमा जो है ये भी क्या है, खिताब है। इसी तरह से नजमुद्दौला हो गया, क्या आता है, और नजमुद्दौला भी बोलते हैं, नजमुद्दौला भी जो है खिताब है। वक़ारुल मुल्क, ये मैं लिखा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लें, वक़ारुल मुल्क, तो ये तमाम जो है ये खिताब की मिसालें हैं वगैरह। ठीक, हाँ अब देखते हैं उर्फ में क्या है। इन तमाम जो इसमें ख़ास की किस्में हैं, इनके फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, आप इसको समझें और याद रखने की कोशिश करें। उर्फ क्या है, कहते हैं कि किसी तरह की नफ़रत या प्यार से जो नाम पड़ जाता है, होता है ना कभी कभी हम किसी के नाम को मोहब्बत में बिगाड़ देते हैं या छोटा कर देते हैं, या नफ़रत से भी किसी के नाम को जो है क्या करते हैं, कल्लू बोल दिया, चुन्नू बोल दिया, तो इस तरह का जो नाम जो होता है ना वो आपको उर्फ कहलाता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लें कि किसी तरह की नफ़रत या प्यार से जो नाम रख दिया जाए, प्यार से जो नाम रख दिया जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, नफ़रत या प्यार से जो नाम रख दिया जाए, ये भी है, या नाम या असली नाम की मुख्तसर शक्ल, ये भी ज़रूरी है, ये भी हो। अगर किसी नाम को आपने मुख्तसर कर दिया, या असली नाम की मुख्तसर शक्ल हो, तो उसे भी उर्फ कहते हैं, ठीक है, तो उसे भी उर्फ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें दो चीज़ आ गई कि किसी तरह की नफ़रत या प्यार से नाम पड़ जाए तो भी वो उर्फ है, और या किसी के नाम की शक्ल को ही मतलब मुख्तसर कर दिया जाए, है ना, तो भी वो क्या नाम है, उर्फ है। जैसे मिसाल ले लें कल्लू, अब किसी के काला होने की वजह से उसका नाम कल्लू रख दिया आपने, है, तो ये आपको नफ़रत की वजह से समझ लो। या चुन्नू बोलते हैं, है ना, कभी कभी चुन्नू भी रख देते हैं, चुन्नू, तो ये जो कल्लू चुन्नू, प्यार से जो चुन्नू मुन्नू बोलते हैं, तो प्यार से बोल दिया चुन्नू मुन्नू, काला होने की वजह से नफरत में जो उसका नाम कल्लू रख दिया, तो ये हो गया। इसी तरीके से फ़खरू बोलते हैं, लेकिन ये फ़खरू जो है नफ़रत या मोहब्बत में दिया हुआ नाम नहीं है, ये दरअसल क्या है, फ़खरुद्दीन नाम है किसी का, उसके नाम को जो है मुख्तसर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फ़खरुद्दीन के नाम को मुख्तसर करके फ़खरू बना दिया गया। तो ये फ़खरू भी उर्फ़ की मिसाल है, आप इसको उर्फ़ के अंदर रखेंगे, इसको इसमें अलम में नहीं डालेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान रख सकते हैं कि फ़खरू किसी का नाम है, हम उसे फ़खरू ही बुलाते हैं, ठीक है, वो आलम ज़रूर है, लेकिन चूँकि वो किसी नाम का मुख्तसर की हुई शक्ल है, तो इस वजह से वो उर्फ़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फ़खरू हो गया, शमशू हो गया, इस तरीके से जो आप नाम को मुख्तसर कर देते हैं, सब उर्फ़ की मिसाल है, ठीक। आगे देख लेते हैं, एक लास्ट हो गया तखल्लुस। ये मालूम होगा कि शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है वो नाम जो
शायर शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है। जैसे बताएं, सबसे पहला नाम तो आएगा गालिब, है ना, है ये गालिब, इस पे ये अलामत लगी रहती है, ये ध्यान में। इकबाल, ठीक है, तो वो जो इकबाल शायर जो है नाम जो है तखल्लुस के तौर पे जो नाम इस्तेमाल करता है, यानी इसके अंदर में शायरी के अंदर हाली, तो गालिब हो गया, इकबाल हो गया, हाली, ये सारे नाम जो शायर शायरी के अंदर जो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं वो तखल्लुस कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या पढ़ा अभी, इस्म की किस्में। इसमें आलम आपको मालूम होगा, कुन्नियत, लक़ब और खिताब, इन तीन चीज़ों को आप ध्यान से देख लेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये तीन चीज़ें कंफ्यूज करती हैं और इससे सवाल आते हैं। कुन्नियत के लिए ध्यान रखना है कि कुन्नियत वो होगा, वो जो नाम जो माँ बाप या बेटा बेटी की तरफ या किसी और ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, वो कुन्नियत कहलाता है। लक़ब जो होता है ये आवाम की तरफ से दिया हुआ कोई नाम, जो उसकी खूबी या ख़राबी की वजह से नाम दे दिया जाए, रुस्तुम हिंद, मलका तरन्नुम, शेर खुदा, है ना, इस तरह का नाम, वो लक़ब कहलाता है। खिताब जो होता है ये हुक्मा, बादशाह, हुक्मरां और उमरा की तरफ से दिया जाता है। और उर्फ़ जो होता है ये प्यार या मोहब्बत में किसी के नाम को बिगाड़ दिया जाए या किसी के नाम को मुख्तसर कर दिया जाए तो ये उर्फ़ कहलाता है, उर्फ़ में उसे ऐसे बुलाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम इससे मतलब कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। देख लेते हैं क्या है सवाल। चलिए, तो आज के सवाल ये हैं। अब इन सवाल को आप या तो के जवाब जो हैं या तो आप अपने मन में दे लें साथ साथ, ताकि पता चल सके कि आपने क्या क्या सीखा है, या आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर सकते हैं। लवाज़िम इस्म किसे कहते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया है, और कितने हैं ये भी बताया है। लवाज़िम इस्म कितने हैं ये बताया है। इफ़राद के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, ठीक है। आगे इसमें अलम को और किन नामों से जानते हैं, इसमें अलम के हमने और भी कुछ नाम बताए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है कि इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं, ठीक है, ये भी बताया है। फ़ख्रू क्या है, अलम है या कुन्नियत है या उर्फ़ है। अभी मैंने बताया भी था कि ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स है। आप ये क्या समझ सकते हैं कि भाई किसी को हम फ़ख्रू बुलाते हैं तो वो उसका अलम होगा, तो आप अलम डाल के चले आएंगे। तो देख लें क्या है ये। नंबर 6 जो है, हुकूमत या उमरा की तरफ से दिया जाने वाला नाम क्या कहलाता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। इसी तरीके से अगला सवाल नंबर 7 ये है कि अबुल कासिम क्या है ना, जो हमने इसमें ख़ास की किस्में पढ़ी हैं उनमें से कौन सी किस्म है अबुल कासिम, क्या है ये लक़ब है, कुन्नियत है, उर्फ़ है, क्या है, आप बताएं टाइप करके। अच्छा, भारत रत्न क्या है, भारत रत्न क्या है, इसमें ख़ास है, ख़िताब है या लक़ब है। इन तमाम सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं देखूंगा, और आपके जवाबों को देखकर यकीनन खुशी होगी कि लोग इसको देख रहे हैं और हमारी कोशिश जो है शायद आप लोगों को पसंद आ रही है, तो इसका भी अंदाज़ा इस चीज़ से होगा ज़रूर। ठीक है, इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और रेगुलर इसको देखें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही हम इस चीज़ को अपडेट करते रहें, और जल्द से जल्द जो है हम इंशाल्लाह बिहार स्टेट उर्दू से मुतल्लिक़ जो सिलेबस को मुकम्मल कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, जब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।